اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اس قصہ عجیبیہ کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، سمعون، لاوی، زبولون، یسر، دان، نفتائی، اور نمبر 9 جاد، 10ویں نمبر پہ عاشر، اور 11ویں نمبر پہ یوسف، اور 12ویں نمبر پہ بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی، اور سامعین ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ اللہ اکبر! اور سب نے بہت زیادہ مارا، پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اس طرح بچایا، جب حضرت جبریل علیہ السلام اس کنویں میں حضرت جبریل علیہ السلام جب کنویں میں تشریف لائے اور ان کو جب تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا، اور گل سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر ہی سے چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہا، کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا، وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے
उन लोगों ने कुत्ते में खून तो लगा लिया था, लेकिन कुत्ते को फाड़ना भूल गए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूर नजर के कुत्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो कुत्ता बिल्कुल सलामत है और कहीं से भी फटा नहीं है। तो आप इन लोगों के मकर और झूठ को भांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर इनके कुर्ते पर एक जरा सी खराश भी नहीं आई। और आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मकरो फरेब है। फिर आपने दुखे हुए दिल से निहायत दर्द भरी आवाज में फरमाया, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफुन, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफुन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खाली था, मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत लजीज और निहायत शिरी हो गया। इत्तिफाक से एक काफिला मदीन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन जुअर खजाई था पानी भरने के लिए आया और कुएं में ढोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ढोल पकड़कर लटक गए। मालिक बिन जुअर ने ढोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न और जमाल को देखा तो यह गुलाम गुलाम कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोजाना बकरियां चराया करते थे, बराबर रोजाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले में पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है, ये किसी काम का नहीं है। अगर तुम लोग इसको खरीदो तो मैं बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ फरोख्त कर दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर ना पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खूब से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी ना बोले। फिर इनके भाइयों ने इनको मालिक बिन जुअर के हाथ सिर्फ 20 दिरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक बिन जुअर इनको खरीद कर मिस्र के बाजार में ले गया और वहां अजीज मिस्र ने इनको बहुत गिरा कीमत देकर खरीद लिया और अपने शाही महल में ले जाकर अपनी मलका जुलेखा से कहा, तुम इस गुलाम को निहायत इजाजो इकराम के साथ अपनी खिदमत में रखो। चुनाचा आप अजीज मिस्र के शाही महल में रहने लगे और मलका जुलेखा इनसे बहुत मोहब्बत करने लगी, बल्कि इनके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता होकर आशिक हो गई और इसका जोश इश्क यहाँ तक और इनका जो जुलेखा थी इसका जोश इश्क यहाँ तक बढ़ा कि एक दिन जुलेखा इसको मोहब्बत में वालेहाना तौर पर आपको फिसलाने और लिबाने लगी, आपको हम बिस्तरी की दावत देने लगी। आपने माज़अल्लाह कहकर इनकार फरमा दिया और साफ कह दिया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के साथ खयानत करके इसके एहसानों की नाशुक्री नहीं कर सकता और आपके घर में से भाग निकले और आप घर में से दूर भाग निकले। तो मलका जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैरहन पकड़ लिया और आपका पैरहन पीछे से फट गया। एन इसी हालत में अजीज मिस्र मकान में आ गए और दोनों को देख लिया तो जुलेखा ने आप पर तोहमत लगा दी। अजीज मिस्र हैरान हो गया कि इन दोनों में से कौन सच्चा है। इत्तिफाक से मकान में एक 4 माह का बच्चा पालने में लेटा हुआ था। इसने शहादत दी कि अगर कुत्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं और अगर कुत्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा की खता है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। जब अजीज मिस्र ने देखा तो कुत्ता पीछे से फटा हुआ था, फौरन अजीज मिस्र ने जुलेखा को खतावार करार देकर डांटा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये कहा कि इसका ख्याल और मलाल ना कीजिए। फिर जुलेखा के मशवरे से अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भिजवा दिया। इस तरह अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की शाही महल से निकलकर जेल खाना की कोठरी में चले गए और आपने जेल में पहुंचकर ये कहा कि ए अल्लाह ये कैद खाने की कोठरी मुझको इस बला से ज्यादा महबूब है
जिसकी तरफ जुलेखा मुझे बुला रही थी। फिर आप 7 बरस या 12 बरस जेल खाने में रहे और कैदियों को तौहीद और आमाल सालिहा की दावत देते बाज फरमाते रहे। ये अजीब इत्तिफाक कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए उसी दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादम, एक शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए। दोनों ने अपना एक एक ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया और आपने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान फरमा दी जो 100% सही साबित हुई। इसलिए आपका नाम मुअब्बिर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। इसी दौरान मिस्र के बादशाह आजम रियाल बिन वलीद ने ये ख्वाब देखा कि 7 करबा गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर इसकी कोई ताबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी जो कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाजत दीजिए। चनाचा ये बादशाह का परस्ताद होकर कैद खाना में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं 7 सूखी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और इनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक सख्त खुशक साली रहेगी। कहत कि इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, फिर इसके बाद हरियाली का साल आएगा। कासद ने वापिस आकर बादशाह से उस ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाना से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरे बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार किया जाए, इसके बाद ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा। चुनांचा बादशाह ने इसकी तहकीकात कराई। तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाया था, खता मेरी है, हजरत यूसुफ सच्चे और पाक दामन है। इसके बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कह दिया कि आप हमारे मोतामिद और हमारे दरबार के मुअज़्ज़ज़ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप जमीनों के खजानों के इंतजामी अमूर और हिफाजी निजाम के इंतजाम पर मीर अतकर कर दें के इंतजाम पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निजाम को संभाल लूंगा। बादशाह ने खजाने का इंतजामी मामला और मुल्क के निजामो इंसिराम का पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इसी तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। इसके बाद आपने खजानों का निजाम अपने हाथ में लेकर 7 साल तक खेती का प्लान चलाया और अनाजों को बारियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का जोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग गले की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए। आपने गलों की फरोख्त में शुरू कर दी। इस सिलसिले में आपके भाई किनान से मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उन लोगों को देखते ही पहली नजर में पहचान लिया, मगर आपके भाइयों ने आपको बिल्कुल ही नहीं पहचाना। आपने उन लोगों को गल्ला दे दिया और फिर फरमाया कि तुम्हारा एक भाई बिन्यामीन है, आइंदा उसको भी साथ लेकर आना, अगर तुम लोग आइंदा इसको ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद को रिजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग इनको नकदियों को इनकी बोरियों में डाल दो, ताकि लोग जब घर पहुंचकर इन नकदियों को देखेंगे तो उम्मीद है कि जरूर ये लोग वापस आएंगे। चुनांचा जब ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे कि अब्बा जान अब क्या हो गया? अजीज मिस्र ने तो ये कह दिया है कि जब तक तुम लोग बुनियामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम इनके हिस्से का भी गल्ला ले आए और आप इत्मीनान रखें कि हम लोग इनकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद जब इन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए
तो इनकी रकमें और नकदियां इनकी बोरियों में मौजूद थी। ये देखकर बरादरान यूसुफ ने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इससे बढ़कर अच्छा सलूक और क्या चाहिए। देख लीजिए, अजीज मिस्र ने हमको पूरा पूरा गल्ला भी दिया और हमारी नकदियों को भी वापस कर दिया है। अगर आप बिला खौफ व खतर हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मरतबा यूसुफ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ, तो तुम लोगों ने क्या कर डाला। अब दोबारा मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा करूं। मैं इस तरह बिन्यामीन को तुम्हारे साथ कैसे भेजूं। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग हलफ उठाकर मेरे सामने हाथ कर लो तो अलबत्ता मैं इसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर सब भाइयों ने हलफ ले लिया और आपने इन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। जब ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जब ये लोग अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपनी मसनद पर बिठा लिया और चुपके से इनके कान में कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, लिहाजा तुम कोई फिक्र गम ना करो। फिर आपने सबको इनाज किया और सब ने अपनी अपनी बोरियां संभाल ली। जब सब चलने लगे तो आपने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। अब बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए, अपने वालिद के रूबरू अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेल कर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन उनके हाथ से छीन लिए गए। अब घर जाएं तो क्यों कर और यहाँ ठहरे तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों, सोचो कि तुम लोग वालिद साहब को क्या क्या अहद पैमान देकर आए हो। इससे पहले तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी तकसीर कर चुके हो। मैं तो जब तक वालिद साहब का हुक्म लिहाजा मैं तो जब तक वालिद साहिब हुक्म ना दें इस जमीन से हट नहीं सकता। हाँ, तुम लोग घर जाओ और वालिद साहब से सारा माजरा अर्ज कर दो। चनाचा यहूदा के सिवा दूसरे सब भाई लौट कर घर आए और अपने वालिद से सारा हाल बयान किया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामले में मैं भी तुम लोगों ने हीला साजी की है, तो खैर मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा, हाय अफसोस। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निडाल हो गए और रोते रोते आंखें सफेद हो गईं। आपकी जुबान से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इनके बेटों पोतों ने कहा, अब्बा जान, आप हमेशा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि लबे गौर हो जाएंगे या जान से गुजर जाएंगे। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया, मैं गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोगों को मालूम नहीं। ऐ मेरे बेटो, तुम लोग जाओ और यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो और खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। अल्लाहु अकबर, कैसा तवक्कल था।